Yes, students, so I will start working of institution. And in this chapter, first of all, I will discuss with you powers, position and functions of president. Of President of India. Yes, as you know, working of institutions means political organs can be divided into three parts: legislature, executive, and judiciary. And under legislature, we have parliament and president. यानी कि जो first part है, that is legislature. So what is the main function of legislature? Law making. So which are the functions of president for legislative or parliament? So we will divide all the powers or the functions of president into different categories. First category is legislative function. Second category will be executive, and I will discuss with you one by one in detail. Third, judicial. Fourth, financial. And fifth is emergency powers. Basically, we can divide the powers or functions of president into different categories: legislature, legislative, executive, judicial, financial, and emergency. Okay? Again, I am repeating, we are doing working of institutions, and under this, in this chapter, we have classified the different powers of organs: legislature, executive, and judiciary. And in the legislature, mainly we will learn about two main functions, that is parliament and president. So सबसे पहले I will discuss with you powers and functions of president of India. Further, we can classify the powers and functions of president of India into different categories. So position of president in our country. President is the nominal head. Basically हम ये कहते हैं कि president जो है बेटा वो head of state है, and उनकी जो powers हैं, their powers are nominal powers. इनकी powers ऐसी ही हैं जैसे ब्रिटेन में क्वीन की powers हैं. तो ultimately basically in our country, prime minister and council of minister, they give advice to the president, and president exercise all his power on the advice of prime minister and council of minister. That's why we can say that in our country, president of India is the nominal head of the country. Nominal का मतलब क्या होता है कि उनके पास powers बहुत हैं, लेकिन वो अपनी इन powers और functions को use कर सकते हैं on the advice of prime minister and council of minister. ठीक है? Then term of president is 5 years, लेकिन he can be re-elected, वो re-elect भी हो सकते हैं, और उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है दैट इज इनडायरेक्टली. हम ये कह सकते हैं कि इन आवर कंट्री प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट डायरेक्टली इलेक्ट प्रेसिडेंट. हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं, बट वी कांट इलेक्ट डायरेक्टली प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में फिर कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जब भी हम बात करते हैं तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मीन मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ठीक है? एंड हमारे इंडिया में टोटल जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स के एमएलएज मींस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. एमएलएज इट मींस एमपीज एंड एमएलएज, दे कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. ठीक है? एंड द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज 5 years. अब आ जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशंस. उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? बेसिकली मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट इज 35 years. ठीक है? यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को कंटेस्ट करने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है? 35 years. ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. एंड थर्ड,
बेसिकली जो है उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस ना हो और वो किसी प्रॉफिट पोस्ट पे ना हो। प्रॉफिट पोस्ट का मतलब होता है ऑलरेडी जॉब में ना हो, अगर हैं तो वो रिजाइन करें, उसके बाद उनको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए जो है वो कंटेस्ट करना हो। तो ये बेसिकली जो है वो क्वालिफिकेशंस होती हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। एंड इम्पीचमेंट आगे है कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, वो भी सारा कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन की गई है, दिस प्रोविजन इज नेम्ड एज इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ द पोस्ट, यानी कि किस पोस्ट किस तरह से इनको रिमूव किया जा सकता है। अब प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए उनके अगेंस्ट कभी भी कोई भी केस जो है वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी ट्रायल केस नहीं चलाया जा सकता। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, एक प्रपोजल होता है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, जो भी उनके अगेंस्ट जो भी क्राइम जो है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली डिस्कस किया जाता है और उसके बाद उसकी वोटिंग होती है। वोटिंग कितनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी का मतलब होता है कि लोकसभा की टोटल जितने भी मेंबर्स हैं 2/3 मेजोरिटी, 2/3 जो है वो उसके इम्पीचमेंट के फेवर में उसको वोटिंग करें। एंड देन आगे राज्यसभा, राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर जो है वो रिपीट किया जाता है। अगर दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा मिलकर 2/3 मेजोरिटी से इम्पीचमेंट का प्रपोजल पास कर देते हैं, देन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। बट अदरवाइज ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट को इस तरह से रिमूव किया गया हो। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट डिक्टेटर ना बने, ठीक है, फिर भी उनको इम्पीचमेंट के लिए जो भी प्रॉपर प्रोसीजर है वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल से जो है वो लिखा गया है, ताकि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं वो अनलिमिटेड पावर्स जो है वो यूज ना करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट देयर पोजीशन, कि प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है। अब आगे आ जाइए, लेजिस्लेटिव फंक्शन। लेजिस्लेटिव पावर्स भी कह सकते हो, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी कह सकते हो। जब भी मैं लेजिस्लेचर की बात करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या पावर्स है या प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। कौन कौन सी पावर्स को वो पार्लियामेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1, फॉर अपॉइंटिंग मेंबर्स। अपॉइंटिंग मेंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा, टोटल लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है 545 और राज्यसभा में कितनी है 250। लेकिन इनमें से लोकसभा में 2 मेंबर्स और राज्यसभा में 12 मेंबर्स। These members can be nominated by the president, ठीक है। President can nominate 2 members from Lok Sabha and 12 members from Rajya Sabha. Nominate का मतलब होता है प्रेसिडेंट अपनी विल या प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, ठीक है, इनको नॉमिनेट कर सकते हैं, इनको अपॉइंट कर सकते हैं। अदरवाइज रेस्ट ऑफ द सीट्स जो हैं, लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी है, वैसे 545 है, लेकिन 543 के लिए इलेक्शंस होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा की टोटल सीट्स कितनी है 250 और इलेक्शंस किन के लिए होते हैं 238 के लिए, और 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हु आर दीज 2 मेंबर्स और 12 मेंबर्स, कौन होते हैं। 2 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, ये एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन सोसाइटी से हो सकते हैं। एंड 12 मेंबर्स जो राज्यसभा के, दोज मेंबर्स who are very famous in the field of mathematics, science, social service, or astronomy, or any other field, sports also. For example, Sachin Tendulkar was the member of Rajya Sabha, ठीक है, तो now he is not the member, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो रिटायर होते हैं आफ्टर 6 years, उनकी टर्म जो होती है वो 6 years होती है। लोकसभा के मेंबर्स की टर्म कितनी होती है 5 years। So basically we are concerned with the functions of president. So आपको इतना याद रखना है that president can nominate 2 members from Lok Sabha and 12 members from Rajya Sabha. ये president की powers हैं parliament से related, ठीक है। other than that और president की powers क्या हैं parliament से related, ठीक है। joint session, joint session का मतलब क्या होता है, whenever any bill is passed in Lok Sabha or in Rajya Sabha, first of all आपको पता है बेटा कि जो बिल है, ठीक है, पहले वो लोकसभा में पास होता है, फिर वो राज्यसभा में पास होता है और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास आता है। लेकिन कई बार क्या होता है बिल के रिगार्डिंग कोई भी डिस्कशन या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो इस केस में, ठीक है, अगर दोनों हाउसेस के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन जॉइंट सेशन इज कॉल्ड अपॉन बाय प्रेसिडेंट टू पैसिफाई ऑल द मेंबर्स। यानी कि दोनों मेंबर्स जो हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के मेंबर्स हैं, अगर कोई भी डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी पर्टिकुलर बिल से रिगार्डिंग, तो दिस कॉन्फ्लिक्ट or problem can be solved with the help of president by calling joint session.
और ज्वाइंट सेशन बुलाकर प्रेसिडेंट जो है उनके बिल की जो भी डिस्कशंस हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करवाते हैं। देन थर्ड इज अप्रूवल, ठीक है, बिल की अप्रूवल से रिलेटेड प्रेसिडेंट की क्या पावर है? प्रेसिडेंट कैन डिले बिल फॉर 14 डेज। जब भी बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उस बिल को डिले कर सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है उस बिल से रिगार्डिंग कोई भी लीगल मैटर या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर लीगल लैंग्वेज होती है। तो इस केस में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर पार्लियामेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं, वो किसी बिल को डिले कर सकते हैं अगर उस बिल से रिलेटेड कोई भी उनको डाउट है, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस जो है वो जजेस से या लीगल मैटर्स के ऊपर किसी से ली जा सके। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड अपनी पावर्स को यूज करते हैं। और क्या है? डिसॉल्व लोकसभा, यानी कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता बेटा, याद रखना, राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस, लेकिन लोकसभा क्या है? टेम्परेरी हाउस। लोकसभा की जो टर्म है वैसे बेसिकली 5 इयर्स है, बट इट कैन बी डिसॉल्व प्रायर, लोकसभा को पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं तो लोकसभा के, यानी कि इसको कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन आपको पता होगा बेटा कि मिड टर्म इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर लोकसभा की एक्सपायरी 5 ईयर से पहले ही अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ऐसे केस में फिर से जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं उनको कहा जाता है मिड टर्म इलेक्शंस, ठीक है। ये कब होता है? जब लोकसभा डिसॉल्व क्यों होती है? ये तब हो सकता है बेसिकली अगर कोलिजन गवर्नमेंट जो है बनी है, आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कॉन्फिडेंस नहीं है, या सपोर्ट जो होता है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनाने के लिए जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना सपोर्ट वापस ले लेती है, तो इस केस में, या फिर मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी है वो मेजॉरिटी, उनकी मेजॉरिटी जो है वो नहीं है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने गवर्नमेंट बनाई, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में जो है वो इतनी ज्यादा डिस्प्यूट्स में बिजी हैं, और इस केस में कई बार क्या होता है लोकसभा में प्रॉपर बिल्स पास नहीं हो पाते हैं, एमपीज आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, जिसके कारण कंट्री में इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लिए जा सकते। तो उस केस में क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा डिसॉल्व भी कर सकते हैं, या कई बार नेशनल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। तो इमरजेंसी के केस में भी प्रेसिडेंट जो कई बार लोकसभा डिसॉल्व कर देते हैं अगर कंट्री की पोजीशन या किसी तरह से एक्सटर्नल अटैक या कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो रहा है। तो ये सारी पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट की हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स कही जाती हैं, जो पार्लियामेंट से रिलेटेड, ठीक है। एनी डाउट रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर्स? एनी डाउट टू यू? These are called legislative powers of president. Legislative powers का मतलब क्या होता है कि प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट से रिलेटेड क्या पावर्स, ठीक है। नॉमिनेशन, हाँ जी आदित्य, यस बेटा, यस बेटा, आस्क योर क्वेश्चन। यस, कीप योर माइक ऑन। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। यस मैम, मैंने कहना था कि मैम आपने जो बिल के बाद वाला समझाया था ना, मैं एक बार ही वो समझा दो। ओके, अप्रूवल ऑफ बिल इज रिक्वायर्ड। यस ओके, यस बेटा, the main function, main power of president is regarding the approval of bill. When the bill is passed in Lok Sabha, ठीक है, then this bill goes to Rajya Sabha, and after passing the bill in Rajya Sabha, it needs approval of the president, and president can delay the bill for 14 days, and president can take advice from the judges of Supreme Court and High Court or any expert, and for that he can delay the bill. वो bill को delay कर सकते हैं। तो ये उनकी पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर है कि वो बिल के रिगार्डिंग अपनी जो सुपीरियरिटी है वो दिखा सकते हैं कि वो बिल को किसी ना किसी तरह से कुछ देर के लिए रोक सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि कुछ एडिशन करने की जरूरत है तो वो एडिशन करके वापस भी भेज सकते हैं, और लोकसभा जो है उसको एडिशन के साथ फिर उसको बिल को पास कर सकती है। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट की बिल पासिंग यानी कि लेजिस्लेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नो डाउट लोकसभा बिल पास करती है, फिर राज्यसभा करती है, लेकिन फाइनल जो अप्रूवल है दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट। इट इज क्लियर? ठीक है, हाँ जी। सेकंड है एग्जीक्यूटिव इट मींस रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब भी एग्जीक्यूटिव की जो टर्म है इट मींस प्रेसिडेंट की प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड कौन से फंक्शंस है, कौन सी पावर्स? सबसे पहला तो है अपॉइंटमेंट, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं कि विच आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग कौन कौन से पावर्स और फंक्शंस को यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले है अपॉइंटमेंट। बेटा लोकसभा के इलेक्शंस, जब भी नई लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, आफ्टर एवरी लोकसभा इलेक्शंस, व्हेनेवर न्यूली गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, ठीक है, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि इलेक्शंस में जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और फिर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, लोकसभा की टोटल सीट्स हैं वो मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, एंड आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर ही एलोकेट्स द डिफरेंट डिपार्टमेंट टू हिज मिनिस्टर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपस में जितने भी उनके लीडर्स हैं, जो मैक्सिमम उनके कॉन्फिडेंस, जो मतलब उनको लगता है कि ये मिनिस्ट्री जो है उसको संभाल सकते हैं, वो रीएलोकेट का मतलब होता है कि उनके बीच में अलग अलग डिपार्टमेंट्स लाइक रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, इस तरह से डिपार्टमेंट्स को वो एलोकेट करते हैं। एंड एलोकेशन के बाद इसकी जो फाइनल जो लिस्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं और प्रेसिडेंट उस लिस्ट पे साइन करते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं, इनकी ऑथ सेरेमनी होती है, और इनकी ऑथ सेरेमनी जो है वो इनको ऑथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, और इस ऑथ सेरेमनी में प्रॉपर प्राइम मिनिस्टर और जो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड जो है उनको डिक्लेयर किया जाता है, और ये टीवी पे लाइव टेलीकास्ट होता है, नेक्स्ट डे इसको मीडिया पे प्रॉपर जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, और इस तरह से हमें पता लगता है कि अब हमारी कंट्री के नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो किन मिनिस्टर्स के पास। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मेन रोल जो है या पोजीशन जो है या पावर फंक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और आगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है मिनिस्टर्स को उनको आगे एलोकेट करवाते हैं। देन इसके अलावा सेकेंड जो एग्जीक्यूटिव जो है, डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा भी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनमें मेजर रोल जो है वो प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट इसमें अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स मींस इलेक्टोरल फंक्शंस को भी साथ के साथ आपने इसमें बताना है दैट प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स जो हैं वो हमारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फॉरेन कंट्रीज में। लाइक हमारी कंट्री की हर जगह एम्बेसी है, फ्रांस में एम्बेसी है, यूएसए में एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है। इन एम्बेसीज में एम्बेसडर्स जो हैं, दीज एम्बेसडर्स are the representatives of our country and they are appointed from Indian government and they are given salaries from the account of Indian government, and all these appointments are made by the president of our country. Then इसके अलावा president can appoint election commission, क्योंकि आपने पढ़ा है election commission सारा। president can appoint chief election commissioner and election other members of election commission also। तो ये भी president का जो है वो एक तरह से important function है। No doubt all these appointments can be made with the help of on the advice of Prime Minister and Council of Minister, but still President has played a main important role to appoint all. Other than that, governors, हमारी कंट्री में जितनी भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में हर स्टेट के गवर्नर्स होते हैं। इवन यूनियन टेरिटरीज आर देयर, और यूनियन टेरिटरीज के भी प्रॉपर गवर्नर्स होते हैं, एंड ऑल दीज गवर्नर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारी कंट्री में बहुत सी डिफरेंट पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन, टाइम टू टाइम कभी प्लानिंग कमीशन है, तो जितने भी इनके हेड हैं, ठीक है, दीज हेड आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। CAGI, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे इंडिया के टोटल अकाउंट्स जो हैं ऑडिट्स करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, दीज पोस्ट डिग्निटरीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये सारी एग्जीक्यूटिव या इलेक्टोरल में आप कंबाइन करके आप इसको बताओगे कि ये इनकी पावर्स है। देन नेक्स्ट इज जुडिशियल। जुडिशियल रिलेटेड टू जुडिशरी। ठीक है, तो ये नाम से पता लगता है कि जुडिशरी से रिलेटेड प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है जजेस की। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट वेरी इजी, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। देन इसके अलावा जुडिशरी से रिलेटेड यानी कि जजेस के डिसीजन से रिलेटेड प्रेसिडेंट की और क्या पावर्स है? क्या प्रेसिडेंट जजेस के जो डिसीजन है उनको चेंज कर सकते हैं? बेसिकली देखा जाए तो हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है जो प्रेसिडेंट की पावर को एक सुप्रीम जो है वो पावर देती है, दैट इज प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस। यानी कि अगर जजेस ने किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस यानी कि फांसी की सजा दी है, देन प्रेसिडेंट कैन पार्डन, पार्डन का मतलब होता है उसको माफ कर सकते हैं,
और उसको चेंज कर सकते हैं इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस एंड ही कैन चेंज डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर होता है और ये सारा प्रोसीजर लीगल प्रोसीजर होता है जिसको एडवोकेट्स या जो लॉयर्स होते हैं वो बहुत लीगली वे से इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मींस एक क्लॉज है, इस क्लॉज के अंडर अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसकी डेथ सेंटेंस को चेंज किया जा सकता है तो एक पिटीशन का मतलब क्या होता है कि रिटर्न रिक्वेस्ट वो प्रेसिडेंट को फाइल कर सकते हैं। बाकी उसको मानना या ना मानना वो प्रेसिडेंट की विल के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट उसके लिए एडवाइस भी ले सकते हैं, जजेस से भी एडवाइस ले सकते हैं, लीगल मैटर्स के ऊपर एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन रखी गई है जो प्रेसिडेंट की पावर को इंप्रूव मतलब और ज्यादा सुप्रीम करती है। देन जब तक प्रेसिडेंट अपनी पावर में है, जब तक प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट में है, नो क्रिमिनल केस कैन बी फाइल अगेंस्ट हिम और हर, यानी कि जब तक वो अपनी पोजीशन पावर, जब तक वो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल केस जो है या उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कभी भी जजेस के सामने प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, बिकॉज ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, उनकी पोस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। अगर कोई कुछ भी ऐसा है, अगर उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा कुछ डिफरेंट कुछ भी उनके अगेंस्ट पाया जाता है तो उसको इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी उनकी एक इंपॉर्टेंट पावर। नेक्स्ट जुडिशली, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप और बता सकते हो कि ही इज द हेड ऑफ 3 फोर्सेस, यानी कि हमारी कंट्री में जो 3 फोर्सेस हैं, एयर, नेवी एंड आर्मी, ही इज द सुप्रीम कमांडर। तीनों कमांडर जो हैं, ठीक है, ये इनको जो गाइडलाइंस कौन देते हैं, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी हमारे जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं इनकी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन, एक जिसे हम कहते हैं कि जो उनका फंक्शन है या जो भी उनकी पावर है उसको और ज्यादा सुप्रीम बनाता। तो ये सारे उनकी जुडिशियल कैटेगरी में आपने बतानी है इनकी पावर्स। देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल मीन्स फाइनेंस, फाइनेंस रिलेटेड टू मनी, यानी कि प्रेसिडेंट का हमारी कंट्री के फाइनेंस के ऊपर क्या कंट्रोल, ठीक है, वो किस तरह से फाइनेंस को कंट्रोल करते हैं, मनी को कैसे कंट्रोल करते हैं, या बिल्स के रिगार्डिंग उनकी क्या जो है वो पावर। नंबर 1 सबसे पहले आपने इसमें बताना है बजट। बजट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट? बेटा बजट इज द एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो 1 ईयर के लिए अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का टोटल जो है वो एस्टिमेट बनाती है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बजट पास किया जाता है, उनको प्रॉपर अमाउंट मिलती है और इस अमाउंट को कंट्री में अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें एलोकेट किया जाता है और आफ्टर 1 ईयर इनका प्रॉपर ऑडिट किया जाता है कि बजट में जितना भी उनको जितनी मनी दी गई थी उस मनी को सेव किया है या खर्च किया है, तो जितना अगर बचा है तो वो गवर्नमेंट को वापस किया जाता है कॉन्टिंजेंसी फंड में, और अगर उसमें सपोज उसमें ज्यादा लगता है तो उसका नेक्स्ट बजट में उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से हमारी कंट्री में प्रॉपर बजट बनता है। हमारी कंट्री में जो भी एक्सपेंसेस हैं, आप देखते हो रोड्स बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, ब्रिजेस हैं, फॉरेन कंट्री से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो इन बजट्स के द्वारा ही की जाती है। तो गवर्नमेंट का बजट जो है वो बहुत हैवी होता है, करोड़ में होता है, ठीक है। तो इसको पास करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन प्रेसिडेंट अलोन कांट, इसके लिए क्या होता है, होल पार्लियामेंट, होल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। और इसके लिए अलग अलग जो हैं वो डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व, फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बजट बनवाते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, फिर प्रॉपर बजट को डिस्कस किया जाता है, बजट के सारे क्लॉजेस को सभी मेंबर्स के सामने रीड करके सुनाया जाता है एंड उसके बाद फिर उसके ऊपर प्रॉपर वोटिंग होती है। वोटिंग में बजट को पास करने के बाद सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड इन द राज्यसभा, राज्यसभा में भी सेम बजट का वही प्रोसीजर होता है एंड फाइनली when budget is passed in Lok Sabha and in Rajya Sabha, then budget goes to president for final approval, और उसके बाद उनके साइन होने के बाद बजट को पास किया जाता है एंड नेक्स्ट डे टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर्स में आपको प्रॉपर बजट में जो जो डिसीजंस लिए गए हैं वो लोगों को बताए जाते हैं, जिसमें लोगों को बहुत होप रहती है कि कौन सी चीजों के रेट बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट बढ़े हैं या नहीं, या जो भी नेसेसिटी आइटम्स होती हैं, कमोडिटीज होती हैं, उनके रेट्स क्या हैं, एलपीजी के रेट क्या हैं, पेट्रोल के रेट क्या हैं, बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली बजट से सबको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और ये पास करवाना प्रेसिडेंट की एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फाइनेंस। देन सेकंड इज कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री का जो कॉन्टिंजेंसी फंड है, फाइनेंस रिलेटेड फंड है, दैट इज आल्सो अंडर द गवर्नेंस ऑफ प्रेसिडेंट। इस फंड में से जो भी मनी ड्रॉ की जाती है वो बिल
पास होते हैं, और इस बिल को पास करने के लिए इनको फाइनेंशियल बिल कहा जाता है, मनी बिल भी कहा जाता है। मनी बिल रिलेटेड टू मनी और फाइनेंस। तो जब भी कंट्री में जो भी मनी बिल पास होता है, तो पहले से मैंने को बताया कि सबसे पहले मनी बिल जो है वो लोकसभा में आता है, उसके बाद फिर वो राज्यसभा में जाता है, और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए वो प्रेसिडेंट के पास आता है। तो प्रेसिडेंट अपनी मनी बिल से रिलेटेड कोई भी अगर पावर है उसको यूज कर सकते हैं, उसको डिले भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बार इमरजेंसी के टाइम पीरियड में अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है कि हमारी कंट्री में इमरजेंसी है या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस केस में मनी बिल को रोका भी जा सकता है, कॉन्टिजेंसी फंड में से जो एक्सपेंडिचर है उसको रोका भी जा सकता है। तो ये भी प्रेसिडेंट के एक इंपॉर्टेंट पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट यूज कर सकते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो देखा जाए हमारी कंट्री का होल फाइनेंस दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये तो थी नॉर्मल जनरल पावर्स, ये सारी जनरल पावर्स हैं जब हमारी कंट्री में कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल एंड फाइनेंशियल। नेक्स्ट फिफ्थ जो है दैट इज इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है कि कई बार कंट्री में कंडीशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल क्यों नहीं है? तीन तरह की कैटेगरीज जो है, ठीक है। नंबर वन इज नेशनल इमरजेंसी। वी कैन डिवाइड इमरजेंसी पावर्स इनटू थ्री पार्ट्स: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसके जो आर्टिकल्स हैं ये भी आपको याद रखने हैं कि हर जो है वो इमरजेंसी के आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किए गए, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कब लगती है और इसमें प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या? नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352, ये आर्टिकल आपने याद रखना है कि आर्टिकल 352 जो है हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, इट हैज बीन रिटन दैट प्रेसिडेंट कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल अटैक। अगर हमारी कंट्री में एक्सटर्नल अटैक, कोई कंट्री अटैक करती है या फिर हमारी ही कंट्री के अंदर कोई आर्म्ड रिवेलियन, आर्मी रिवोल्ट करती है, या किसी तरह से हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इस केस में प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 352 को यूज करके हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और आपको पता है ऐसा बहुत टाइम हुआ है जब हमारी कंट्री में चाइना और पाकिस्तान अटैक हुआ था, लाइक इन 1962, 1965, 1971। ये 3 इयर्स जो हैं बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट इयर्स हैं। इन इयर्स में हमारी कंट्री में इमरजेंसी जो है वो लगाई गई थी। अगेन आई एम रिपीटिंग, 1962, 1965 एंड 1971, ठीक है। और इन पर्टिकुलर इयर्स में हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट ही इम्पोज इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ये इमरजेंसी पूरी कंट्री में लगाई जाती है। नेशनल मींस रिलेटेड टू होल कंट्री, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब कंट्री में इमरजेंसी लगती है तो क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली देखा जाए तो हमारी कंट्री में बेटा सेंटर एंड स्टेट जो है, ठीक है, वो अपना अपना काम करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए लॉ बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट पर्टिकुलर अपनी अपनी स्टेट के लिए बनाती है। लेकिन जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यूनिटरी का मतलब होता है ऑल पावर्स, ऑल डिसीजंस विल बी टेकन बाय द प्रेसिडेंट। अब पूरी कंट्री के लिए सेम लॉ बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट फिर अपना अपना लॉ नहीं बना सकती, क्योंकि ऐसे में पूरी कंट्री को सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो इस केस में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपने ये बताना है द स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री चेंज फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी। यानी कि देखा जाए फेडरल, बेटा सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिटी और फेडरल का मतलब क्या होता है। यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज गवर्निंग। फेडरल का मतलब होता है पार्ट्स, लाइक आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यू टू नेशनल इमरजेंसी स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट कैन बी चेंज इनटू यूनिटरी, यानी कि उस पर्टिकुलर 1 ईयर के लिए या 6 मंथ्स के लिए पूरी कंट्री को गवर्न करने का राइट किसके पास होता है? फिर प्रेसिडेंट के पास होता है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने अपने लॉज नहीं बना सकती, पूरी कंट्री के लिए सिंगल लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इसको ये मेन नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट की पावर्स को और ज्यादा सुप्रीम करता है। देन सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल कैन बी सस्पेंडेड। जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती, अदरवाइज हम कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू मूव एनीवेयर, ठीक है। लेकिन अब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, उस केस में लोगों के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कुछ टाइम के लिए, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, या फ्रीडम टू मूव आउट, या फ्रीडम टू
मूव डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, वो कुछ देर के लिए लिमिट कर दिया जाता है, वो भी इसलिए ताकि लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। अभी आपने देखा है कि हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर 2020 में लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, अलग अलग लॉकडाउन्स में पूरी कंट्री की जो पॉलिसी थी वो सभी स्टेट्स में इंप्लीमेंट की गई थी, तो सभी स्टेट्स उसको फॉलो करती थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नेशनल इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन पार्ट ऑफ इमरजेंसी। कर्फ्यू जब लग जाता, अभी भी नाइट कर्फ्यू है, तो ये पूरी अलग अलग कंट्री में सभी स्टेट्स में सेम यूनिफॉर्म पॉलिसीज जो है उनको एप्लीकेबल किया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसके अलावा और क्या चेंजेस हो सकते हैं? बेसिकली बेटा मैंने आपको ये बताया कि हमारी कंट्री में जो लिस्ट सिस्टम होता है ना, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, रेजिडरी लिस्ट है, ठीक है। तो इन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अलग अलग गवर्नमेंट लॉ बनाती है। सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन बेटा जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग लॉ नहीं बना सकती। ये कुछ चेंजेस है, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरी कंट्री के लिए सिंगल लॉ की जरूरत होती है। तो ऐसे टाइम के लिए 6 मंथ्स के लिए 1 ईयर के लिए स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस जो है उस टाइम में जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब लगाए जाते हैं। सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 356। हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 में ये लिखा गया है कि इफ एनी स्टेट इज नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज स्टेट इमरजेंसी ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेट। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर में ये स्टेट इमरजेंसी काफी टाइम लग चुकी है। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो स्टेट प्रेसिडेंट के अंडर होगी और प्रेसिडेंट रूल लगेगा, यानी कि फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सीएम जो है वहां के एमएलएज हैं उनकी पोस्ट खत्म हो जाती है और स्टेट जो है डायरेक्टली कंट्रोल की जाती है जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का आर्टिकल है 360 एंड ये तब लगाई जाती है जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है या हमारी कंट्री का फाइनेंस जो है या हमारी कंट्री की रूपी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डाउन हो चुकी है, तो उस पर्टिकुलर केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ऐसे में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को रोका जा सकता है, मनी बिल को पास नहीं होने दिया जाता, बजट में जो भी अप्रूवल की जाती है कॉन्टिजेंसी फंड को रोक दिया जाता है ताकि कंट्री में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फाइनेंस की कमी है। और इस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो सब पूरी कंट्री में एप्लीकेबल होती है, किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, वो सभी लोगों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। एनी डाउट? Any doubt regarding these powers beta? I have discussed with you 5 powers: legislative, executive, judicial and emergency. No doubt?